ریشمی کالی چادر کے بارے لکھو، اور اس ہاتھ رابہ سے جو گفتگو تو نے کی تھی وہ سب سے کہوں بہو۔ تجھ سے ملنے بھلا بھی نہ ایک تابعی آئے تو نے ان سے بھی کی پردگی، جس پہ کہنے لگے میں تو نابینا ہوں، دیکھ سکتا نہیں مجھ سے پردہ ہو کیوں، دیکھ سکتا نہیں مجھ سے پردہ ہو کیوں، جس پہ فرمائے تو نے کہ پھر کیا ہوا، میں تو سب دیکھتی ہوں تو پردہ ہوا، مجھ کو مرغوب دنیا سے کھیلنا اور فرحت فضا جھولوں کا جھولنا، تجھ کو حضرت ہجرت کے سبھی واقعات اور ان کے سبھی جزیات، خواب میں دیکھا تجھ کو نبی پاک نے ریشمی سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے، ریشمی سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے، اس کی تعبیر میں ان کی زوجہ بنی، واہ اے میری ماں کیا ہے قسمت میری، ماں شوال 10 نبی کو عبد تھا، اس لیے اس گھڑی میں بنی ان کی تو اہلیہ، عبد کے وقت پر 6 برس عمر تھی اور 10 برس میں ہوئی رخصتی، پہلے ہجری تھی اور ماہ شوال تھا، شہر طیبہ میں تیرا آنگن بسا، 500 درہموں کے حق مہر تھا جو نبی کو ابو بکر نے کا دیا، تیرا نام ہے نور ہی نور ہے، اس لیے ظلمت رخصت دور ہے، اس لیے ظلمت رخصت دور ہے، تابعہ تیری توقیر لکھتی رہو اور جنت کو تقدیر لکھتی رہو، تابعہ تیری توقیر لکھتی رہو اور جنت کو تقدیر لکھتی رہو، بیج جاؤ کے شاہی میں لکھتی رہو، تیرے دشمن کو بیدی میں لکھتی رہو، تیرے دشمن کو بیدی میں لکھتی رہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ماں کے دم سے ہی ہوا کرتی ہے پورے گھر کی رونق، اور آگے سے کہ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا، یا رب ہر ایک کی ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ اب میں آواز دیتی ہوں ریان پٹھان اینڈ بوائز کو جو آئے اور مائے مدد کے اوپر خوبصورت سی انگلش نشید اور پوئم پیش کریں۔ Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you, who used to feed you and always be with you when you were sick, stay up all night holding you tight, that's right, no other, my mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. 'Cause who used to hear you before you could talk? Who used to hold you before you could walk? And when you fell, who'd pick you up, clean your
who should I stay right close to, listen most to, never say no to, after Allah and Rasulullah comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. 'Cause who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose, and when you cried, who'd wipe your tears, knows your fears, who really cares? My mother. Say Alhamdulillah, thank you Allah. Thank you Allah for my mother. حدیث آتی ہے کہ الجنت تحت قدم الامہات، الجنت تحت قدم الامہات. موونگ آن ٹو دی نیکسٹ. ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے. ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے. اے مسلمان، قرآن کھول کر تو دیکھ، تیرے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے، تیرے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے. اسی جو میں نے شعر پڑھا، اسی کو نظم کا رخ دینے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں علشمہ کو کہ وہ آئے عربک میں یہ نظم پڑھے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ سنیے، بس تھوڑی دیر اور انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا، ففي قرآننا نور وفي أظلام دنيانا، سوى القرآن لا نهد شريعته ألا نهد، ففي آياته إبه وأحكام بها نهد، تحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير، وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر، إلى القرآن نحتفظ وبالإسلام نعتصم. كتاب الله وحدنا فلا أنس ولا عجم، كتاب الله أحيانا. السلام عليكم. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاطب المدبر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحافظ المقيم الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحافظ الجامع على النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الباسط المطيع الوتر التواب الديان الرؤوف الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي الأليم الستير القدير المولى المعصم الوارث المميت البديع
जाऊँ। माशाल्लाह लेकर आप लोगों ने सब्र के साथ, सबूत तहम्मुल के साथ प्रोग्राम को संभाल किया। अल्लाह ताला आप लोगों के वक्त में बरकत अता फरमाए और आप तमाम का यहाँ आना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बारिक वसल्लम। माशाल्लाह आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, वैसे ही बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ नजमा बाजी को कि माशाल्लाह बगैर बच्चों को अपने पास बुलाए हुए, ठीक है, घर में तमाम की वालिदा जो भी थी और सबने घर में बच्चों की प्रिपरेशन कराई है ना। बच्चों को उन्होंने इकट्ठा भी नहीं करवाया और सब खुद ब खुद अपने आप से जो बच्चों ने प्रिपेयर किया और फिर नजमा बाजी ने सबको इकट्ठा करके तमाम बच्चों में एक साथ 3 दिन के अंदर इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया है ना, यानी इस प्रोग्राम की प्रिपरेशन। तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद की हामिल है वो, क्योंकि इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, फिर भी इतने अच्छे तरीके से जो है हम मैनेज नहीं कर पाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो करवाती है ना। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई बिसात नहीं कि हम इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। वो अल्लाह ही चाहता है, जिससे काम लेता है, लेना है वो अल्लाह ताला जानता है ना। तो हदीस में भी आता है कि हर कोई जो है हर काम नहीं कर सकता और कुछ लोग करते भी रियाया और नमूद होती है तो वो काम अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में इतने अच्छे तरीके से इस महफिल को सजाया और बच्चों को तैयार किया। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की हामिल है नजमा बाजी और उनकी पूरी टीम और पूरे अलका जो है अरकान अंजुमन। आप तमाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल करें। आप लोगों की मेहनतों को, काविशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। हम तमाम का यहाँ आना अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार ऐसे दीनी प्रोग्राम में जोड़े और आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग इतने देर इत्मीनान, थोड़ी देर और जस्ट और 10 to 15 मिनट इंशाल्लाह, फिर आप सब लोग को हम छोड़ दें। ठीक है, एक लास्ट प्रोग्राम। तो ये बच्चे ने माशाअल्लाह से पढ़ा, मतलब प्रैक्टिस की है। तो हम कुरान की एक बहुत प्यारी सी सूरह मरियम उसके याद सुनते हैं। इसके लिए मैं आवाज़ और अलबीना को, अरीबा और अलबीना। आंटी के मतलब मोहतरमा नजमा कुरैशी साहिबा के बहुत मना करने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम इनको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आज यहाँ पे आप जो ये समर देख रहे हैं ना, ये इन्हीं की जो है मेहनतों का नतीजा है। और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि इसी तरह इस राह पे गामजन रहे। तो मोहतरमा नजमा कुरैशी साहिबा, आप प्रोफेशनली एक टीचर हैं, उसके साथ साथ आप अनज फाउंडेशन की फाउंडर है और आप जो है वो 20 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की राह में जो है वो काम कर रही है दीन और तबलीग का। वक्तन न सिर्फ नागपुर में बल्कि अतराफ के नागपुर के शहर, गाँव और बहुत से इलाकों में आप जो है इज्तिमा और तकरीर जो
چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ آج النجم کی جو ٹیم اور جو بچوں کے پرفارمنس، اس کے علاوہ جو النجم کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے دیا گیا، اس میں کنڈکٹ کیے جانے والے ہر ایک پروگرام میں، ہر ایک ایونٹ میں شاید ہم سے زیادہ محنت جو ہے یہ ہماری فاؤنڈر کرتی ہے، کیونکہ بارک اللہ ہوگی ان کی جو اسکیڈیول ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ شاید ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی محنت ہم لوگوں کو جو ہے ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے کہ جب اس ایج میں یہ کر سکتی ہیں تو ہم لوگ تو ابھی شاید یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہی ہم لوگ تھک جائیں گے، ہم جا کے سو جائیں گے ہم لوگ. لیکن یہ آنٹی کو محترمہ نجوہ قریشی صاحبہ کا فون آئے گا نیکسٹ ڈے، چلیے اب آگے کیا کرنا ہے، اپنی نیکسٹ کلاس کے بارے میں کیا ڈسکس کریں. تو یہ ہے محترمہ نجوہ قریشی صاحبہ. تو ہم آنٹی کو بس اسی سے بتانا چاہیں گے کہ آپ ہم سب کی جو ہے موٹیویشن ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح اللہ آپ لوگوں کو اور موٹیویٹ کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے. آمین. اچھا ہو اور سچا ہو انجام. میرے دو پاؤں چھوٹے موٹے پاؤں ایسے ہیں ہر وقت ساتھ. آؤ یہ دعا کرو سیدھی راہ پہ چلو، سیدھی کا راستہ چنو. میرے دو کان چھوٹے موٹے کان ایسے ہیں ہر وقت ساتھ. آؤ یہ دعا کرو ان سے باتیں جو سنو سچا ہو اور اچھا ہو انجام. میری زبان چھوٹی سی زبان رہتی ہے ہر وقت ساتھ. آؤ یہ دو سچی باتیں بولو اور دم رہے اللہ کا نام. میری دو آنکھیں ان کی باتیں آنکھیں رہتی ہے ہر وقت ساتھ. آؤ یہ دعا کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لتيس من روح الله وتبشر بعطاء الله. لم يغلب يسرا يسرين فانظر في آية الله. لتيس من روح الله وتبشر بعطاء الله. لم يغلب يسرا يسرين فانظر في آيات الله. لتجعل لنفسي سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أنا الجهال والله. لتجعل لنفسي سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أنا الجهال والله. من كان الله ولو مولى هل يقنط من كرم الله. لا تيأس من روح الله وتبشر بعطاء الله. لم يغلب يسرا يسرين فانظر في آيات الله. الله يناديك سهيرا فانبسأ يا بني الله. وصل أتيك ما أغترت لتخلو من غير الله. إن كنت مريضا يا أبدي فأنا الشافي وأنا الله. وكنت خسيرا الآن يجبر قصرك غير الله. مولانا ارحمنا واجبرنا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد السعيد رسول الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد السعيد رسول الله. جزاک In the name of Allah, اللہ کے نام سے. کیا آپ سب جانتے ہیں کہ چند حروف کے اس
बिस्मिल्लाह में कितनी बरकत होती है। आइए मैं दावत देती हूँ आरिफ और आरिफ को कि वो आए और हमें बिस्मिल्लाह की बरकत से तारुफ कराए। जी मैं कहाँ जा रहे हो? बस यही स्टेशनरी की दुकान में जा रहा था। क्यों? स्कूल की बैग लेनी है। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, और जाते जाते बिस्मिल्लाह पढ़ना मत भूलना। अल्लाह पाक आपको नुकसान से महफूज रखेंगे। अरे मौलाना साहब आपका दिमाग खराब है क्या? आप मौलवी मल्ला को इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब ये दुआ पढ़ो तो ये काम करो, जब ये काम करो तो ये दुआ पढ़ो। ऊपर जाता हो करना, ऊपर नीचे होता हो सुभान अल्लाह, जब दरवाज़ा बंद करे तो बिस्मिल्लाह, जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाअल्लाह, जब कोई चीज़ अजीब लगे तो सुभान अल्लाह, जब कोई चीज़ का इरादा करे तो इंशाअल्लाह। आप मौलवी मुल्ला को इसके अलावा कोई काम नहीं मिला? अरे यार मेरी जेब में पैसे हैं और दुकान भी करीब है, मैं जाके ले लूँगा। इसमें बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की क्या ज़रूरत है? माफ़ कर मैंने दिल दबाए। एक अच्छी क्वालिटी का बैग दिखाओ। ठीक है, ये वाला पैक करना। माफ करना भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसा आएगी तब ले लूँगा। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। अरे क्या बात है इनायतुल्लाह भाई, आप तो बैग लेने गए थे, कहाँ है बैग? अरे क्या बताऊँ मौलाना साहब, गलत हो गया। बिस्मिल्लाह, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बिस्मिल्लाह, मेरी जेब कट गई। बिस्मिल्लाह, किसी ने मेरे पैसे उड़ा लिए। बिस्मिल्लाह, अगर मैं आपकी बात मान कर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो ऐसा ना होता। बिस्मिल्लाह। अरे इनायतुल्लाह भाई, अब तो बिस्मिल्लाह का वजीफा पढ़ने लग गए। आप अपनी कहानी का बता रहे, बिस्मिल्लाह ज़्यादा बोले जा रहे हैं। अरे क्या बताऊँ मौलाना साहब, मुझे इस वाक़े से ये पता चल, बिस्मिल्लाह की अहमियत पता चल गई है। अगर मैं आपकी बात मानकर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अच्छा ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा से ख्याल रखना। ठीक है, मैं अगली बार से हर अच्छे काम करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के इत्मीनान से पढ़ना, और यह तभी कर सकते हैं जब आप लोग हुरूफुल हिजा जानते हैं पढ़ना विद मखारिज। तो आइए मैं दावत देती हूँ। Bye.
मुसलमान खातून होने के लिए खातून होना मतलब एक इतनी बड़ी हमारे ऊपर रहमत है कि मुसलमान खातून होने के नाते हमें नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाने की, बिकॉज वो हक तो इस्लाम ऑलरेडी हमको दे चुका है. हमें नहीं चाहिए वो वाला वुमेन एम्पावरमेंट जो सो कॉल्ड नारों के जरिए होगा, राइट. तो आज हम क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेटी की पैदाइश मनहूसियत का बायस, ये
میں بہت زیادہ خوش ہوں آج یہ پروگرام میں میرے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروا کے، اور نجمہ باجی کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ ہے اور ان کی ٹیم کا، کیونکہ ہم خود یہ جیسے کہ باجی نے کہا کہ ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، تو ہم یہ ذریعہ بن رہی ہے اور ہمارے بچے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جزاک اللہ النجم فاؤنڈیشن کا۔ اور جس بھی طرح سے میں سب سے التجا کرنا چاہوں گی کہ جس بھی طرح سے آپ ان کی مدد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے مدد کریں یا کچھ بھی، آپ مطلب اپنا پریزنس بھی ایک مدد ہوتی ہے، آپ کا جو ہے پارٹیسپیشن، والنٹیئر جو بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ضرورت ہے ان کو، اور ایسے فاؤنڈیشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، سبھی لیڈیز آگے آئیں اور اپنے بچوں کو اسپیشلی تھوڑی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ بھیجیں، اور ضرور اس کا فائدہ آپ کو آگے چل کے ملے گا انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ باجی آنٹی، اور بہت اچھا آپ کا پرفارمنس رہا، بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام رہا، اتنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے ان سب کو مطلب کنڈکٹ کروانا اور پورا پریزنٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، تو یہ پورا پروگرام بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے پل اپ کیا ہے، تو آگے اس سے اور بھی زیادہ اچھا بیٹر امپرومنٹ کر سکتے ہیں، تو آل دا بیسٹ آگے کے لیے سبھی کو، ٹیم ممبرس کو، نبیلہ، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اس محفل میں شامل ہونے کے لیے یہاں بھیجا، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں یہاں کے، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں کی جو آرگنائزر ہے محترمہ نجمہ قریشی صاحبہ، تو ان کی بے حد شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دن و رات انشاءاللہ جب بھی میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، میں ان کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور ان کا ایک الگ مقام بنائے انشاءاللہ، کیونکہ وہ دنیا کی خواہش یا مطلب پرستی نہیں مجھے نظر آتی، بلکہ جو کام کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف للہیت، اخلاص، یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اخلاص سے، للہیت سے، جس سے ہماری قوم ملت کا بہت بڑا فائدہ ہو انشاءاللہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے، شاید اس کو آپ کو بہت ہی گہرائی سے لینا ہوگا کہ آج ہمارے جو سمر ہالیڈیز ملتے ہیں ہمیں، ہے نا، ہم ان کو ایسے فضولیات میں نہ گوائیں۔ ہمارے بچوں کو اگر چھٹی ملی ہے تو ہم ان کو الگ الگ اوکیشن پہ لے جا کر، گھومنے کی جگہوں پر لے جا کر، اور مطلب ایسی بھی ہے کہ جگہوں پر لے جا کر اپنے بچوں کا جو مینٹیلٹی ہے وہ خراب نہ کرے، کیونکہ دین سیکھنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے لیکن بے دین ہونے کے لیے محنت نہیں لگتی، وہ ماحول کے اعتبار سے آتا ہے۔ تو میں اب تمام ہی لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو چھٹیاں اسکول کی ملتی ہے یا جیسے بھی آپ خالی ہوں، اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو ایسے جتنے بھی فاؤنڈیشن ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، تو آپ ان سے جڑیے اور دین سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اس کا انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں فائدہ ملے گا۔ دین سیکھ کر کوئی دنیا میں پیچھے نہیں رہا ہے، تو دین سیکھ کر ہم دنیا میں بھی آگے رہیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں تو ہمارا مقام مرتبہ ہے ہی۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے وقت کو دینی خدمات میں، دینی تعلیمات کو سیکھنے میں لگائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے پیچھے؟ سلام کا جواب دینا باجی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے یہاں پر بہت وقت دیا، تو میں آپ کو بس شارٹ 2 سے 5 منٹ کے اندر آپ کی بات ختم کروں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام ایک کانسیپٹ دل میں ڈالا، اس کے بعد جب ایک
की मदद और तौफीक के बगैर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अब आते हैं कि मेरे लिए ये प्रोग्राम क्यों ज़रूरी था, मेरा इसके पीछे क्या मकसद था। आप सब जानते हैं कि 8 बच्चे जिस बेराह रोगी को मैं देख रही हूँ उसकी क्या वजह है। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म बताऊंगी कि जो परिवार है ना वो समाज का एक यूनिट होता है और हम बच्चों को मुख्तलिफ ढंग की खिलाना पिलाना घुमाना फिराना अच्छे कपड़े अच्छे खाने उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तक अमल करते हैं, दौड़ भाग करके जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपसे ये हरगिज़ नहीं पूछेगा कि आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, कितनी डिग्रियां दी, कितने लिबास पहनाए, कितने खाने, आपसे कभी और कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपका बच्चा आपका दामन पकड़ेगा कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप ने मुझे सही दीन नहीं सिखाया। तो असल मकसद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जा बजा फरमाते हैं कि माल और औलाद इंसान के लिए फितना है। जिस तरह जहर अपने आप में जहर होता है तो क्या औलाद भी अपने आप में फितना है। जबकि हम सब जानते हैं कि औलाद एक नेमत है। जिसके पास औलाद नहीं है उससे पूछिए कि औलाद क्या होती है। लेकिन अगर आपको एक नेमत मिली है और अगर आप उस नेमत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो कल आपसे सबसे पहले सवाल होगा कि आपने अपनी रैयत के बारे में क्या किया। तो हमने खिलाने पिलाने को पालने पोसने को तरबियत का नाम दे दिया, जबकि तरबियत ले रही है। तरबियत उनकी रूहानी जिस्मानी माली समाजी अखलाकी रूहानी सारे ढंग की परवरिश को तरबियत कहते हैं। और इसमें सबसे सरफहरिस्त आता है इल्म, और इल्म 2 तरीके का होता है। नंबर 1 फॉर्मल एजुकेशन जो आपको जॉब के लिए तैयार करता है, आपको क्या करना है कैरियर ओरिएंटेड बनाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो आपको समाज में जीना सिखाता है, समाज को खूबसूरत बनाता है, अपनी फैमिली को कैसे वक्त देना है, अपने अल्लाह ताला के लिए कैसे हुकूक की पासदारी करनी है, अपने आखिरत के पर्चे को कैसे हल करना है, मैं कैसे माँ बाप के फर्ज अदा करूँ, कैसे शौहर का फर्ज अदा करूँ, हक अदा करूँ, कैसे रिश्ते नातों को संभालूँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन अफसोस हम औरतें रात और दिन काम में लगी होती हैं, लेकिन अफसोस या तो हम उस कामों का एहसान अपने शौहर पर बच्चों पर फैमिली पर उतारती हैं और उसके बाद हमारे पास खाली हाथ होती है। कल ऐसा ना हो कि आप अल्लाह के पास बेशुमार नेकियां लेकर जाएं, लेकिन वो नेकियां आपकी पहाड़ों के बराबर होने के बावजूद आपके मुंह पर फेंक कर मार दी जाए। अल्लाह ताला कभी नहीं पूछेगा कि आपने अपनी औलाद को कितना खिलाया, कौन कौन से डिशेस खिलाए, कौन कौन से लिबास पहनाए, कहाँ कहाँ सब तफरीह के लिए लेके गए, कभी नहीं पूछेगा। जिन पैसों को आप इन कामों में खर्च करते हैं उन पैसों का आपको यकीनन हिसाब देना होगा। कोई इंसान बच नहीं सकता कि मैंने ऐसी घुमली थी ख्वाहिशात परस्ती को अपनी परस्ती बना ली, हमने ख्वाहिशात की पैरवी करते करते हम भूल चुके हैं कि एक दिन हमको मरना भी है और एक दिन हमको दुनिया से जाना भी है। तो मैं इंशाअल्लाह आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें इस तालीम और तरबियत को ज़्यादा ध्यान देना है। ये असल रूहानी ग़िज़ा है। कितना भी जी लेंगे एक दिन मर जाएंगे, कितना भी खा लेंगे एक दिन मर जाएंगे, कितना भी घूम लेंगे आप मर जाएंगे। रिश्तेदारों को निभाते निभाते थक जाएंगे, लेकिन लोग खुश नहीं होंगे। लोगों को खुश करना छोड़िए, अल्लाह ताला को खुश करना दीजिए। और इन बच्चों की जिम्मेदारी आपके हैं, हाथ में है। जो नेमत है आपके लिए उस नेमत को नेमत बनाइए खुद के लिए भी, वरना ये आपके लिए कल ज़हमत बनेगी, अज़ाब जारिया बनेगी। अगर आपने इसको अखलाक में सिखाया, आपने इसको किरदार में सिखाया। अभी आपने देखा ना कि वुमेन एम्पावरमेंट पर आपने बात सुनी, यूथ एम्पावरमेंट पर आपने बात सुनी कि यूथ को कैसे मैनेज करना है जबकि ये फितरों का दौर है। औरतों को कैसे काम करना है जबकि ये दौर बहुत खराब है, जिसमें आए दिन तलाक आए दिन खुला हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बर्दाश्त नहीं सिखाया। हमने अपने बच्चों को अगर एजुकेशन दिया भी है तो इसलिए कि मैं क्या हूँ, कैपेबल, मैं किसी का क्यों सुनूं, इसलिए मैं बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ। मैं बेटों को पैसा कमाने की मशीन अगर बनाती हूँ तो उसको
मवद्दत मैंने सिखाया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कल अल्लाह ताला के सामने आपका हिसाब किताब बड़ा आसान हो जाए, तो आप दुनिया को तबलीग करने के बजाय या ये सोचें कि हर इंसान हर काम यकीनन नहीं कर सकता और मैं भी अपनी कोई हैसियत नहीं है कि मैंने ये किया। तो आप अपने बच्चों के लिए आए जो है, मैं चाहती हूँ कि नागपुर के अंदर, और मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि नागपुर में अपनी क्वालिटी का, अपने तर्ज अमल का ये शायद पहला प्रोग्राम है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन कहीं म्यूजिक शामिल है दीन के नाम पर, कहीं डांस शामिल है, कहीं पर खुले चेहरे और फोटोग्राफी शामिल है। आपको ऐसी कोई यहाँ पर वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको कहीं शरीयत को टूटना दिखा हो। मैंने स्ट्रिक्टली हमारी टीम से कहा कि अगर म्यूजिक होगी बंद कर देंगे, हमें साउंड चलता है, दफ चलता है जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है। मेरे पास किसी भी शरीयत के लिए हमारा असल दावत कुरान और हदीस है, सही मनज है, अल्लाह के रसूल की इताअत है। वैसे कहने को बहुत कुछ है। इसके साथ ही जो दूसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि हमारे साथ क्रिसेंट स्कूल और दारुल उलूम सरकिया ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। मैं उनकी तहे दिल से एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, और मैं चाहूँगी कि उनकी एजुकेशन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कम फीस में, मतलब दूसरे स्कूल्स के बनस्बत उनकी फीस वाकई में कम है और वो बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों को एजुकेट करवाना है तो एक स्कूल वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद दारुल उलूम सरकिया जहाँ पर मदारिस है, मदरसा है, मदरसे की जो मस्जिद है, आप उसमें अपने ताउन कर सकते हैं और अपने बच्चों को आलिम, हाफिज वगैरह बनाने के लिए वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा हज और उम्रा का टूर का यहाँ पर है। अगर आपको लगता है मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा मकसद है कि जहाँ आपको भरोसा हो, जो भरोसेमंद जगह हो, आप वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी। इसके अलावा एक बच्ची के बारे में आपसे कहा जिसके फादर की ईद के दिन ही तबीयत बिगड़ी, पिछले 1 महीने से तबीयत खराब थी और चूँकि मौत आ चुकी थी, इससे डॉक्टर को पहुँच नहीं रहे थे, और वो बच्ची महज 5 साल की है और सबसे छोटी बच्ची महज 7 महीने की है। मैं जिस दिन से उनका इंतजार हुआ मेरा गले का रोज फटता है, लेकिन हम अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कर सकते हैं उस पर आपका और मेरा सपोर्ट, लेकिन यतीम एक बेवा के लिए सपोर्ट करना हमारी अखलाकी ड्यूटी भी है। कल अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि आपने तो पेट भर भर के खाया है, आप तो अच्छे बात करते रहे हैं, लेकिन इनका ख्याल किसने रखा? तो अगर आप इसके लिए कोई ताउन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ताउन कर सकते हैं, जिस भी टीम का ताउन करना चाहें। अब हमारी टीम को ताउन करना चाहें तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इसको ऊपर उठाएं। और मेरी टीम ने जो मैंने अक्सर तारीफ की, ये तो मेरा आइडिया था, लेकिन इन बच्चों ने, इसमें शफक नज़ीर खान, नायाब खान, शिफा खान और नबीला कुरैशी है, इन बच्चों ने रात और दिन एक किया है और तकरीबन शफक और नबीला ने रात तक और सवेरे तक घंटों इस पर प्रिपरेशन की है। तो मैं इनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा हमारी शमा मैडम है, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत भरपूर सपोर्ट किया। तरबियाबाद के बच्चों के लिए ये मेहनत करती रही और सब ने अलग अलग सपोर्ट किया। इसमें फायदा है, आफरीन है, इसके अलावा सना है और बाकी और लोगों को जिनको मैं नाम भूल गई, वो सब मेरे साथ मेरे बाजू है, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को उरूज पर ले जाए। मुझे बहुत फख्र होता है जब मेरी कौम के बच्चे ऊपर जाते हैं। मेरी बचपन से एक आदत थी कि जब रिजल्ट आता तो मैं देखती कि इसमें कितने बच्चे मेरे वाले, मैं टच करती। ये मोहब्बत थी जो मुझे इस मुकाम पर शायद भी आई। मेरे पास कोई नेकियां नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत के शायद कि मैं इसी मोहब्बत की वजह से बच गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सदका जारिया बना दे, हमारी आंखों के सुरूर बना दे, हमारा दिल का सुकून बना दे, हमारी नस्लों को रहनी दुनिया तक उनके दीन पर, ईमान पर जारी और सारी रख। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा उठना, बैठना, मिलना, हर चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पर कबूल फरमाए। आपने जो 1 रुपया इस पर खर्च किया है, आपने जो 1 मिनट इस पर खर्च किया है, अल्लाह ताला उस पर अजर अजीम अता फरमा दे आप सबको। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे इसके अलावा जैसे कि नारे पास को बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग का अरेबिक कैलीग्राफी एंड मॉडर्न कैलीग्राफी क्लासेस भी होता है, तो उसके लिए हम लोग की मतलब अंदर जो फाउंडेशन ने बुक भी बनाई है। तो अगर आप लोग बुक परचेज करना चाहें तो उसके सब मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो परचेज करना
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, जस्ट 150 रुपीज़। एंड हम लोगों ने पीछे फीडबैक फॉर्म लगाया है, फीडबैक चार्ट, जो लोग बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाह रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप लोग पीछे जाकर फीडबैक लिख कर आ सकते हैं। प्लस पीछे स्टॉल्स भी है खाने के, जो आप लोग वो भी कर सके हैं, और हमारी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से आज ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा। इस पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसकी मासियत और तौफीक के बगैर किसी भी मजलिस की कामयाबी मुमकिन नहीं। बादहू मैं इस टीम अन-नज्म की जानिब से अपने तमाम मेहमानान खुसूसी का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और अपने औकात समीना को हम पर खर्च किया। और मैं ख़ास तौर पे कलीम ठेकेदार साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमारी हर तरह से मदद की, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को कबूल शर्फ अता फरमाए और उनकी नस्लों के अंदर दीन जारी और सारी रखे। जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में हमारी जिस लाइन से भी मदद की या ताउन किया, अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। और मैं शमा फरोज मैम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने अपनी क्रिसेंट स्कूल और दारुल उलूम सल्फिया के बानी डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और आने वाले तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने वक्त हमको दिया। और साथ ही साथ मैं अन-नज्म टीम के तमाम जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं उन मासूम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी मेहनत और लगन से ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुँचा। मैं